Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, student. Once again, welcome to my lecture. This is me, Mohammad Rahim, and today we will discuss class 10th chemistry, chapter number 9. As you people know that we discussed the previous topics that were equilibrium, types of equilibrium, and chemical equilibrium as well. So today we are on page number 9, so please open your book, page number 9, that we will discuss the topics that are reversible reactions and dynamic reactions. As we discussed the reversible reactions in previous lecture as well, but I will give a slight touch to it, that what reversible reactions are. And we will discuss reversible reactions along with dynamic equilibrium. What dynamic equilibrium is and what reversible reactions, they both are related with each other, because dynamic equilibrium that is found only in reversible reactions. When there are reversible reactions are occurring, so we can get that there will be a state, there will be a situation in which dynamic equilibrium is found. As well as there is an activity on page number 11 that we will discuss, or that will be your homework for next lecture, before next lecture. So please let's go to start it. What the reversible reaction is? Reverse means bake. Reverse means bake. So some of the chemical reactions we have, they can reverse bake to their reactants. As the reactions occurs, the reactants react with each other, they produce products, but sometime in chemical reactions, some of the chemical reaction, their product react with each other and they change, they convert into, bake into their reactants. Such type of reactions are known as a chemical reaction. जैसे कि आपको मालूम है स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और जो है ना केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया था. डायनामिक इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम हम स्टेट फॉर्म बैलेंस स्टेट ऑफ किसी सिस्टम को बोलते हैं. जब किसी सिस्टम में जब किसी सिस्टम में आपको दोनों साइड पर सेम फोर्सेस, सेम अमाउंट, सेम कंसंट्रेशन, सेम क्वांटिटी किसी चीज़ की मिल जाए, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. या फिर जब हम किसी सिस्टम में हमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा हो, उसको फिर हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं. जब उसमें किसी सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि उसके पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट भी हो रहे हैं, तो एक ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन या ऐसे अमाउंट में हो रहे हैं कि उसमें हमें चेंज नज़र नहीं आता है, या फिर वहाँ पर पार्टिकल जो है ना वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, स्टैटिक है अपने जगह पर, और हमें चेंज नज़र नहीं आ रहा है, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं. दो टाइप से इक्विलिब्रियम के, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिसमें बिल्कुल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम्स आर नॉट कन्वर्टेबल विद ईच अदर, दे आर ऑन देयर ओन प्लेसेस, they are in rest state, that is known as a static equilibrium. While the second type of the equilibrium, that is dynamic equilibrium. Dynamic means motion. Whenever there is any motion in the particles of the system, the particles of the system of two sides are interconvert with each other, but they are converting in such a moment, in such amount that we can't judge the change, there is no change in them. That is known as a dynamic equilibrium. What chemical equilibrium is? Whenever we find any equilibrium in chemical reaction, for example, if there is any chemical reaction is going on and we find that chemical reaction is in equilibrium state, so that equilibrium will be known as a chemical equilibrium.
For this we must know reversible reaction as well, that what reversible reactions are, because there are two types of reactions, reversible reactions, non reversible reactions. reversible reactions वो reactions होते हैं जो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना सकते हैं, अपने ही रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे में तो प्रोडक्ट बनते हैं और वापस उसी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाते हैं। लेकिन इरिवर्सेबल या नॉन रिवर्सेबल जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन, वो जब एक बार रिएक्टेंट आपस में मिल जाते हैं और प्रोडक्ट्स बना देते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स फिर दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते, उसको इरिवर्सेबल रिएक्शन बोलते हैं। तो इरिवर्सेबल रिएक्शन में जो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इरिवर्सेबल रिएक्शंस में क्या होता है, जब एक बार रिएक्टेंट चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में तो वापस प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता है, तो वहाँ पर हमें एक चेंज नज़र आता है, हमें प्रोडक्ट कुछ और शेप में नज़र आते हैं और रिएक्टेंट हमें कुछ और शेप में नज़र आते हैं, तो हमें चेंज नज़र आता है, वहाँ पर बैलेंस नहीं होते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक दूसरे के, तो उसमें हमें इक्विलिब्रियम नज़र नहीं आ सकते, उसमें हम इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। जबकि रिवर्सेबल रिएक्शन में क्या होता है कि जितने अमाउंट में रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, वापस उसी प्रोडक्ट से उतने ही अमाउंट में रिएक्टेंट्स, वापस उतने ही रिएक्टेंट्स और सेम रिएक्टेंट्स बनते हैं। तो इस वजह से हम रिवर्सेबल रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सॉरी डायनामिक इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिवर्सेबल रिएक्शंस क्या है, व्हाट द रिवर्सेबल रिएक्शंस आर? अ रिवर्सेबल रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द conversion of reactants to product and the conversion of products back to reactants occurs simultaneously. यही बात कह रहा है, वापस जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बोलते हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज अ रिवर्सेबल रिएक्शन। द बेस्ट एग्जांपल इज गिवन हियर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है जो कि प्रोडक्ट है। अब क्या है कि ये एक्सोथर्मिक है, वापस यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट हमारे पास पहले इस रिएक्शन में बन गया अमोनिया का, अब ये वापस ये प्रोडक्ट टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है और इससे वापस वही रिएक्टेंट बन रहे जो पहले रिएक्शन कहते हैं, तो ये वापस रिएक्ट हो गया, ये एंडोथर्मिक है। इस नीचे वाले जो रिएक्शन है रिवर्स रिएक्शन, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, टेक्स इन इट एनर्जी, इसमें एनर्जी रिलीज होती है ऊपर वाले में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको एज अ होल पूरे रिएक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं एज अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाते हैं अमोनियम मॉलिक्यूल। अमोनियम मॉलिक्यूल वापस प्रोडक्ट है, वापस ब्रेक हो जाता है और वापस रिएक्टेंट बना देता है। This is known as a reversible reaction. Now we will observe how the reversible reactions are, how the dynamic equilibrium is taken place in the that how dynamic equilibrium take place in the reversible reaction. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने अमाउंट में हमारे पास तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि यहाँ से जितने अमाउंट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ पर उतने ही यहाँ पर वापस बैक कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमें कोई चेंज नज़र नहीं आता है, लेकिन उनके पार्टिकल्स, सिस्टम के एक साइड के पार्टिकल और दूसरे साइड के पार्टिकल एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, तो इस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। What is reversible reaction? A reversible reaction is a chemical reaction in which the products can be converted back to reactants under stable condition. It needs a stable condition that the product will go back to the reactants. It is not that much easy, or it not too much easy, nor it doesn't go back easily. It needs a suitable condition. In a stable condition, the product can convert back to the reactants. The reaction involves two reactions. The reversible reactions involves two reactions. What they are? There is a forward reaction and a mirror image रिवर्स रिएक्शन। क्या होता है रिवर्सेबल रिएक्शन में? हमारे पास दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैक रिएक्शन।
या रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन या फिर उसका मिरर इमेज रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन तो आपस में मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, और वापस वही प्रोडक्ट आपस में ब्रेक हो जाते हैं और रिएक्शन बना लेते हैं, तो उसको रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। रिवर्सेबल रिएक्शन इज शोन बाय द साइन डबल एरो, ऑफ एरो टू द राइट फॉरवर्ड रिएक्शन एंड a half arrow to the left reverse reaction। ये कह रहा है कि हम किसी रिवर्सेबल रिएक्शन को इस साइन से जाहिर करते हैं, तो इसका ऊपर वाला जो हाफ एरो है, ये जो हाफ एरो है ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन शो करते हैं, और नीचे वाला जो आपका हाफ एरो है ये आपका रिवर्स रिएक्शन शो कर रहा है। व्हाट डायनामिक इक्विलिब्रियम इज, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसको हम रिवर्सेबल रिएक्शन में किस तरह ऑब्जर्व करते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम occurs when for a reversible reaction the rate of the forward reaction equals the rate of the reverse reaction. Since the two rates are equal, it looks like nothing is happening, but in reality the reaction is continuously occurring at its stable rate। ये कह रहा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। डायनामिक इक्विलिब्रियम उस वक्त आता है जब एक रिवर्सेबल रिएक्शन हो रहा हो और उस रिवर्सेबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट जो है ना वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के मुताबिक, यानी जितने रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उतने प्रोडक्ट आपस में मिलकर के वापस रिएक्टेंट बनाते हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट जो है ना उनका क्वांटिटी जब इक्वल हो और हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, कुछ नथिंग इज हैपनिंग, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे कुछ हो रहा होता है, कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, वो चेंज हो रहा होता है। तो इसको उस वक्त हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रिवर्स रिएक्शंस आर बैलेंस्ड, द सिस्टम इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब हमारे पास किसी सिस्टम में रेट ऑफ डायनामिक फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बैलेंस हो, उस सूरत में हम बोल सकते हैं कि अब नाउ द सिस्टम इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। दिस डज नॉट मीन्स दैट नथिंग इज हैपनिंग। रिवर्स डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये कभी नहीं है कि कुछ हैपन नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, बट something is happening, too much things are happening, but what happens, they are happening in same rate, we can't observe the change, so therefore it is known as a dynamic equilibrium। Like here you can see this tape, how the water falls in this in the same amount the water go out from this tape, so how much the water comes inside this tank, in the same amount they go out, so we see the level here, the water level is not changed, neither it increases, neither it decreases, neither it go up, neither it comes down, so we can't observe any change here, but in reality we are observing the change, water comes and water go out, so it means now this system is in equilibrium state। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पानी आ रहा है और जा रहा है, लेकिन हम इस वाटर के मॉलिक्यूल का जो लेवल है उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ये गिरता नहीं है, ना ऊपर जाता है ना नीचे। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का दोनों का अमाउंट सेम है और हमें चेंज नज़र नहीं आता है, लेकिन एक्चुअली आप देख सकते हैं कि ये पार्टिकल और वो पार्टिकल दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसमें हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट नज़र आती है। तो ये सिस्टम हमारे पास अब जो है ना ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। डोन इलेक्ट्रो डायनामिक इक्विलिब्रियम, जब आप ये इलेक्ट्रिक स्ट्रिप्स पर जब आप ऊपर चलते हैं तो वो आपको वापस नीचे लाता है, आप जितना ऊपर जाएंगे उतना आपको वापस नीचे आएगा, तो चेंज नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो हम स्ट्रिप्स ले रहे होते हैं, हम ऊपर जा रहे होते हैं, स्ट्रिप्स ले रहे होते हैं, लेकिन जितना हम ऊपर जाते हैं वापस इलेक्ट्रिक जो स्ट्रिप है वो वापस हमें नीचे ले आता है। तो इसमें भी हमें ये फॉर्म भी जो है ना ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है। बेस्ट एग्जांपल है इसका डायनामिक इक्विलिब्रियम का वाटर साइकिल, जितना वाटर इवापोरेट हो रहा है, जितना वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट हो रहे हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल वापस कंडेंस होकर के पानी बन जाते हैं, तो ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इस तरह से हम केमिकल रिएक्शंस में हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर फिर एक और एग्जांपल दिया है, डाई मालिक्यूल्स, कलर के जो मालिक्यूल्स दिए हुए हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पर देखो हमने जितना कलर डाल दिया है उतना कलर यहाँ पर इतना फैल गया और यहाँ पर इतना फैल गया वाटर मालिक्यूल्स के अंदर। लेकिन अब आप देखो कि यहाँ पर हम जितना डाल रहे हैं उतना ही यहाँ पर फैल रहे हैं और उतना ही यहाँ पर है। लेकिन क्या है कि चेंज आया है लेकिन पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट हुए हैं और जो है ना सेम अमाउंट में और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में क्रिएट हो गया है। Example of dynamic equilibrium, an example of the reaction at equilibrium is the reaction of hydrogen and iodine in a closed container to produce hydrogen iodide. At the start of the reaction there is a high concentration of hydrogen and iodine and the concentration decreases एज हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉरवर्डेड। जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन को आपस में मिलाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए, तो पहले स्टार्ट में हम देख रहे होते हैं क्लोज कंटेनर के अंदर अगर हम रख दें तो स्टार्ट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन की मिकदार ज़्यादा होती है। फिर जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन की जो कंसंट्रेशन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है। और फिर वापस इसी तरह जब हाइड्रोजन आयोडाइड से वापस ब्रेक होता है तो उसे हाइड्रोजन और आयोडीन बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन कंसंट्रेशन जो है ना वो डिक्रीज होती है। तो हमें कोई चेंज नज़र नहीं आता है। ये भी जो है ना डायनामिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस ग्राम में रिएक्शन आकर जो हो रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है और इक्विलिब्रियम स्टेट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक हो रहा है और ये आयोडीन और आयोडाइड बना रहे हैं, दोनों सेम ही रेट में हो रहे हैं। सो वी कांट फाइंड एनी चेंज हियर। दिस इज नोन एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिकॉज द पार्टिकल्स आर मूविंग विद ईच अदर, दे आर कन्वर्टिंग विद ईच अदर। The last topic of the day, that is activity number 9. Write down the balanced chemical reactions for the following chemical compounds when they attain the state of dynamic equilibrium. Dear students, this is your activity and as your homework. You have to write down the chemical reaction between the nitrogen and oxygen, what the products are and how they will be balanced. Write down the chemical reaction between the nitrogen and hydrogen, write down the chemical reaction between the hydrogen and iodine, write down the chemical reaction between the carbon dioxide and hydrogen, कि उनके दरमियान क्या हो रहा है, वो किस तरह रिएक्शन करते हैं और वो किस तरह बैलेंस होते हैं। This is your homework and do this activity in your rough notebook. This is the last of the day, of the lecture of today. Inshallah, we will discuss law of mass action and derivation of expression for the equilibrium constant. One of the this is a numerical type question topic. So law of mass action and derivation of the expression for the equilibrium constant will be discussed in the coming lecture, inshallah. If there is any confusion, dear students, you can comment in the comment box and you can contact me on WhatsApp. My WhatsApp WhatsApp number is present in the group. And if you misplace this lecture, you can watch it later back on my you can watch later it on my YouTube channel, Mohammad Reem Khan Official. So you can contact me as well on WhatsApp. So thanks to all of you for being with me. See you with a new lecture. Thanks.